Charu Pragya, Sumayya Rana says that this is dadagiri. The fact that the Home Minister has said everyone will have to accept it, कह रही है दादागिरी है क्या कि सबको मानना पड़ेगा? You know, I've been listening to this conversation and laughing away, Swati, because I think the Home Minister has put everything in perspective today for the entire country. And let's run through several misinformation and narratives that is being floated around by people like her. She should be ashamed, but let's not go there. Let's focus on the message that we are trying to drive across. Point number one, you can only donate what you own. I want to give a donation to WAF, but I'm not going to give my land. Let me give my neighbor's land. Is that how it works? And that poor neighbor had no legal recourse. If the tribunal doesn't listen to him, couldn't go to the High Court even. We have changed that. Isn't that for the betterment of the country? Poor Muslims, poor people were losing their lands to this very arbitrary kabja that was happening. This very same kabja that these opposition leaders have been time and time talking about. Again and again, whether it is Mallikarjun Kharge ji or Lalu Prasad Yadav ji, Waqf ne zameen hadap li ji. So today we are coming up with a provision where this is a two-way conversation. Anyone can go to court. Waqf can go to court. The person whose land has been taken away can go to court. Why shouldn't we focus on that? Number two, they don't care about representation. Really? Really? Well, women like you are privileged because you're sitting here on national television with sufficient representation. But think about those women who do not have a say. Charu Pragya, we also have Sudha Mishra of the Congress joining us on the broadcast. And before I come to you, Ms. Mishra, let me in fact play out that reaction of Home Minister Amit Shah when he said that law of the land reigns supreme and everyone will have to accept it. मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सुमैया राना, क्या अब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि ये संसद का कानून है और हर किसी को इसको मानना पड़ेगा? वोट बैंक के लिए कानून नहीं बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि कागज दिखाने पड़ेंगे, तो ये जो इनकी नियति है वो उसमें बहुत बड़ा खोट है। दूसरी चीज में, आप जिस संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर जिस तरह मुखरता से झूठ बोलने का काम गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। नहीं, कौन सा झूठ? प्लीज, आप किसी को इंटरप्ट नहीं करती हैं। नहीं, एक मिनट, क्योंकि एक मिनट सुमैया राना, आप जिस तरह की बातें कर रही हैं, जिस तरह की बातें आप कर रही हैं, you have to provide some evidence, substantiate, you will have to substantiate the allegations that you are leveling। पहले आपसे जब कहा कि लॉ ऑफ द लैंड मानना पड़ेगा, आपने कहा दादागिरी है। भाई, यहाँ कानून का राज चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलता है और किसी को भी दिक्कत नहीं है कानून मानने में। कानून का राज भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। जो अमेंडमेंट ले करके आ रहे हैं वो सीधे बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स है। एक मिनट, ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स है। स्पेसिफिक बात कीजिए, स्पेसिफिक बात कीजिए, कौन सी धारा है? हो रही है, आप बार बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह। अरे मैडम, वी वांट दिस डिबेट टू बी, वन सेकेंड, वी वांट दिस डिबेट, वन सेकेंड, एन इंफॉर्मेटिव डिबेट सुमैया राणा जी, एन इंफॉर्मेटिव डिबेट, so that the viewer who's watching the debate gets
इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिबेट, नॉट जेनेरिक स्टेटमेंट्स की ऐसी कुछ धाराएं हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है, स्पेसिफिक बात कीजिए, स्पेसिफिक काउंटर मैं लीजिए। एक बात आपको बता देती हूँ सुमैया जी, जो पहला अमेंडमेंट है वो पहला अमेंडमेंट ये बोलता है कि यदि कोई भी वक्फ की जमीन है जिसपे कोई मस्जिद है, खामखां है या कोई मदरसा है, उसको आप रजिस्टर करवाइए और 2 अप्रैल तक जितनी भी वक्फ की जमीनों में जो भी है, जो भी मदरसे हैं, जो भी कब्रिस्तान है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये धारणा आप और आपकी पार्टी बना रही है लोगों को कहकर कि सरकार आपकी वक्फ की जमीन ले लेगी। दूसरी बात, आप अगर कोई वक्फ की जमीन कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने लीगल एयर्स को देंगे हिस्सा, कि आपकी बीवी को, आपके बच्चे को, बच्चे में आपकी बेटी को भी उसका हिस्सा मिलेगा, उसके बाद आप वक्फ कर सकते हैं। और शरीयत के हिसाब से एक व्यक्ति सिर्फ अपना 1/3 हिस्सा किसी के नाम पे कर सकता है, बाकी सारा ब्यौरा कुरान में लिखा गया। क्या अब आप कुरान के खिलाफ भी जाएंगी? अगर सरकार ने कुरान के ब्यौरा से ये एक रूल बना दिया है और बिल्कुल ताजे, आप ये बात को समझ लीजिए कि बिल्कुल हित में किया है, आप हिसाब नहीं देना चाहते, कल को आप अपने घर में चारू भी प्रज्ञा, हिसाब बिफोर वी दीजिए। गो अक्रॉस टू डॉक्टर मिश्रा, देयर वाज सम कनेक्टिविटी इशू, विल कम टू यू। चारू प्रज्ञा, आप तो पेपर दिखाने के लिए बोल देते हैं, भरोसा हो नहीं पा रहा है आप पे? देखिए, मैं ना इन मोहतरमा से एक साफ सवाल पूछना चाहती हूँ। 10 लाख एकड़ है वक्फ के पास इस देश में, 10 लाख एकड़। एक स्कूल नहीं बनाया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, एक विधवाओं के लिए आपने घर नहीं बनाया, विधवाओं को आप पेंशन नहीं दे पाते। पता है आप क्या करते हो? 5 स्टार होटल को 12,000 रुपए में वो जमीन दान दे देते हो। इस तरीके के घपले चलते आ रहे थे और इन घपलों पर पर्दा डालने का काम आप जैसी महिलाएं कर रही है। आपको शर्म नहीं आती? आप समाज का उद्धार नहीं चाहती, आप वृद्ध लोगों की सेवा नहीं चाहती, बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहती। आप ये चाहती हैं कि जिन लोगों ने वक्फ को मिसयूज करके अपनी जेब भरी, जिसने मिसगवर्न करके गरीब लोगों का पैसा लूटा, जमीन लूटी, आप उनका साथ देना चाहती है। भाई अपनी आंख खोलिए, दिमाग खोलिए। और वो लोग जो अपोज कर रहे हैं, Today people who are opposing this, saying that this is a bill, a reform which is against the minority community or something that is going to completely destroy waqf and take away lands, are the very same people who spoke about Kabza, Dr. Mishra, and this is what the Home Minister said in Parliament. He spoke about Lalu Yadav making those statements कि land loot हो रहा है, वक्फ का कब्जा है। जी, मेरा कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी जी, पूरी बात आने दीजिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं मैम। मुझे पता है कि चीजें दिखाना और जो होता है उसमें बताना बहुत फर्क है। आप सबको पता होगा, अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि उससे कितना भला हो जाएगा, कितनी चीजें बेहतर हो जाएंगी, कितने कम पैसे में होटल बन गए, सारी बातें आ गई और मैंने सुना उसको बहुत ध्यान से। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड पे किसका लाडला बैठा है और उस पे कौन कौन से आरोप है, इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं होगा। जो जमीनें वक्फ की है सरकारी, उस पे जो बने हुए हैं आपके सारे चीजें, 200-300 रुपए किराया सरकार दे रही है, उस पे क्या कहना है मोहतरमा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी और इसका उत्तर आपके पास शायद नहीं होगा, आप बता भी नहीं नहीं वो देना चाह रही उत्तर, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं प्लीज, हाँ मेरी बात पूरी आने दीजिए। बिल्कुल, तो जब आप बातें करते हैं, आईना लेके अगर बैठे हो तो आईना पहले देखिए। आईने का काम होता है आपको दिखाना। आप बड़ी बड़ी बातें, साहित्य की बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो आपके पास है, आप तनख्वाह तो अपने आर्मी बन की दे नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं जो पैसे आपके पास है उसको आप लोग खर्च कर रहे हैं बेइंतहा, कहाँ नहीं पता है। अब आपको लगता है कि वक्त में सुधार, अगर आप जमीन नहीं लेंगे, अगर आप बाकी चीजें नहीं लेंगे तो आप सुधार क्या कर रहे हैं? नहीं, इन इरेगुलरिटीज का जिक्र सच्चर कमेटी ने भी किया था, रिफॉर्म की बात सच्चर कमिटी ने भी की थी। किस एरा में हुई थी वो आप अच्छे से जानती हैं। जो आज आपके साथ ऑपोजिशन में बैठा है वो खुद पहले लैंड लूट और लैंड, 1 सेकेंड, वक्फ कब्जे की बात किया करते थे। आज वो उसी रिफॉर्म के, 1 सेकेंड, आज उसी रिफॉर्म को वो क्वेश्चन कर रहे हैं। बट चारू प्रज्ञा, डू रिस्पॉन्ड टू द एलिगेशंस बिफोर आई रैप अप। So she comes from the brigade where they say पार्लियामेंट वक्फ की जमीन पे बना है, दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पे बना है, ईडन गार्डन कलकत्ता का वक्फ की जमीन पे बना है। वक्फ के पास कोई प्रूफ है, कोई कागज है? नहीं, कागज की जरूरत ही क्या है जी, हमने बोल दिया बहुत है। सी, दिस इज नॉट अ रिलीजियस अमेंडमेंट, दिस इज अ लैंड एंड अ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दे हैव स्प्रेड दिस काइंड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन बिफोर एवरी सिंगल रिफॉर्म दैट हैज हैपेंड इन दिस कंट्री, व्हिच इज बीइंग हेल्ड टुडे बाय द वे, व्हिच इज बीइंग अपलॉडेड टुडे, whether it is triple talaq, whether it is the CAA, and today whether it is the waqf. This needed to be done. We are done with people like them. Okay, BJP says